السلام علیکم، میں ہوں ایسٹرولوجر بلال شفیع۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا 2023 اکتوبر کا یہ ہفتہ 11 تاریخ سے لے کے 19 تاریخ کا کیسا رہے گا ایریز سے لے کے پائسس والوں کا۔ اچھا، ایک اور چیز میں بتاؤں گا، جو سورج گرہن ہو رہا ہے 14 اکتوبر کو، یہ اس کی کیا ریمیڈی کرنی چاہیے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، ہر انسان کا ایک پرسنل برتھ چارٹ ہوتا ہے، اسے پیدائشی ذائچہ کہتے ہیں، کہ کیونکہ ہر انسان کی پروفیشنل لائف، ہیلتھ، ریلیشن، ایجوکیشن، اس کے جو مطلب باہر جانا ہو یا واپس آنا ہو، کوئی بھی ایسے معاملات ہو جو بڑا اس کا سائیکل، کورٹ کیسز کے معاملات ہوں، یا ریلیشن میں کوئی بریک اپ چل رہا ہو یا میرج ہونے والی ہو، آپ کا پارٹنر کیسا ہے، آپ کی سوچ کے حساب کا ہے یا آپ کے سوچ کا وہ اینیمی ہے، یہ ساری چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کے کچھ کرم بھی ہوتے ہیں، کرما جسے کہتے ہیں، کہ کچھ لوگ بہت اچھا کرتے ہیں، اپنی طرف سے بہت اچھے انرجی لگاتے ہیں، ہر طرح سے وہ بہت اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس کو وہ سپورٹ نہیں مل پا رہی ہوتی، یا مطلب سمجھ لیں کہ اس کو اس طریقے کا رسپانس نہیں مل پا رہا ہوتا۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ ساری چیزیں ہیں کیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ویسے بتاؤں، ایریز کا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، ایریز سے لے کے پائسس والوں کا یہ 11 تاریخ سے لے کے 19 تاریخ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، تو پہلے میں اس پہ بات کرتا ہوں، اور میں اینڈ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سورج گرہن کی کیا آپ کو ریمیڈی کرنی چاہیے اور یہ کرما کیا ہے۔ ایریز والوں کا یہ ہفتہ کیسے جانے کے امکانات ہیں؟ ایریز والوں کو میں کہوں گا، آپ کے ریلیشن کے معاملات میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کر کے چلنی ہے، آپ کو غصے سے، لڑائی جھگڑوں سے بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے۔ آپ کی اگر شادی ہوئی بھی ہے تو کوشش کریں کہ لڑائی جھگڑے یا ان چیزوں سے تھوڑا پرہیز کریں، ورنہ بات بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے، کیونکہ مارس اور کیتو ساتھ میں گھر میں چل رہا ہے، آپ کا لگن کا مالک ہے۔ کچھ آپ کا قرضہ لینے کی طرف یا قرضے کی لین دین کی طرف آپ کا دھیان جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کا پائے تکمیل تک پہنچے، مطلب آپ کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے پروفیشنل معاملات میں کچھ ہلکی پھلکی سی چینجنگ یا کوئی ذمہ داری آپ کی پر بڑھ جانا یا کام کا لوڈ بڑھ جانا، اس ٹائپ کی چیز آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ محبت کے معاملات میں ہو سکتا ہے کوئی نیا پارٹنر آپ کی زندگی میں انٹر ہو، اور ہو سکتا ہے آپ کے، یا اگر آپ کی کسی سے محبت کے معاملات چل رہے ہیں تو وہ شادی یا منگنی میں کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ ایجوکیشن کے معاملات میں آپ لوگوں کا بہت اچھا فیس رہے گا۔ بچے اگر آپ کے ہیں ایریز والوں کے، تو ان کے ساتھ آپ کی، جیسے کہتے ہیں نا، کہ بہت زیادہ اچھی بانڈنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بچوں کی کوئی خوشی یا بچوں کی کوئی خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی سفر، اس ٹائپ کے کوئی امکانات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگلے برج کی طرف میں آتا ہوں، ٹورس والوں کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ ٹورس والوں کو میں کہوں گا، آپ کو اپنے گھر کی طرف آپ کا دھیان بڑھ سکتا ہے۔ آپ کی والدہ کی ہیلتھ کا تھوڑا سا آپ کو خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے، مگر اس میں آپ کی والدہ کی اگر کوئی پرانی ہیلتھ کا ایشو چل رہا ہے تو وہ سالو ہونے کے بھی امکانات ہیں۔ کوئی گاڑی چینج کرنا چاہتے ہیں یا بائک چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے وہ بھی ہونے کے امکانات ہیں۔ محبت کے معاملات میں آپ کا بہت اچھا ویلکم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور میں یہ کہوں گا اگر کوئی لڑائی جھگڑے اختلافات چل رہے ہیں تو وہ اس ہفتے سالو ہونے کے بھی امکانات ہیں۔ آپ کے ایجوکیشن کے معاملات میں بھی آپ کو بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ تھوڑا سا اگر آپ کو اپنے ہیلتھ کا میں کہوں تو آپ کو اپنے پیٹ کا تھوڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ مسلز پین، کچھ ہو سکتا ہے سر میں، جسے کہتے ہیں نا کہ درد سا ہونا، یا سر میں کھچاؤ سا، ایک سر کی مطلب سر میں ایک نیند نیند سی کیفیت رہنا، ایک اسٹریس والی پوزیشن آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ آپ کے کوئی پروفیشنل معاملات میں کچھ مائنر سی چینجنگ، یا ہو سکتا ہے کسی کہنے پر یا آپ خود کچھ چینجنگ کرنے کی طرف آپ کا فوکس بڑھ سکتا ہے، اور کسی کے لڑائی جھگڑوں سے تھوڑا سا ذرا پرہیز کیجیے گا، ورنہ آپ کے لیے تھوڑا سا ذرا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو تھوڑا کسی کے سے کہتے ہیں نا کہ لڑائی جھگڑوں میں آپ کو پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا جیمنائی والوں کا یہ ہفتہ کیسے جانے کے امکانات ہیں۔ جیمنائی والوں کو میں آپ کو کہوں گا، کچھ ہو سکتا ہے آپ کو پیسوں کے حساب سے کوئی اچھی خبر آپ کو سننے کو مل سکتی ہے۔ گھر یا گاڑی یا گھر میں کوئی کام کرانا، یا گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت کا بڑھ جانا، یا کچھ گھر میں جیسے ہوتا ہے نا کہ فریج لے لیا، یا گھر سے ریلیٹڈ کوئی کام کروانا، اس ٹائپ کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ محبت کے معاملات میں تھوڑا سا آپ کو احتیاط کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ کچھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، یا جس کی وجہ سے آپ کا تھوڑا موڈ خراب ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے والد کی ہیلتھ کا بھی تھوڑا خیال رکھ کے چلنے کی ضرورت ہے۔ پروفیشنل معاملات میں اس ہفتے کے اینڈ سے آپ کو کچھ بہتری دیکھنے کو ملے گی، اور ہو سکتا ہے کسی اچھے دوست یا پرانے دوست کی سپورٹ سے آپ کو کوئی پروفیشنلی فائدہ کہہ لیں، بزنس کا فائدہ کہہ لیں، یا کوئی اکنامیکل کہیں نہ کہیں سے آپ کو کچھ سپورٹ ملے گی، جس کی وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اگلے برج کی طرف میں آتا ہوں، کینسر والوں کا یہ ہفتہ کیسے جانے کے امکانات ہے۔ کینسر والوں کو کہوں گا، تھوڑا سا ذرا آپ کے موڈ میں ایک غصہ ٹائپ کو آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اکنامیکل معاملات میں آپ کو کچھ بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے،
वालदा की आपको हेल्थ का थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है इस हफ्ते। और मैं ये कहूँगा कि किसी करीबी रिश्तेदारों में कोई अल्लाह ना करे कोई डेथ की या कोई बीमारी की आपको जिसे कहते हैं ना कोई खबर आपको सुनने को मिल सकती है। और एक और चीज़ मैं आपको कहूँ, कुछ खाने पीने का आपको अच्छा खाने का या बाहर के खानों का इस टाइप का आपका थोड़ा जैसे कहते हैं ना होटलिंग या घूमने फिरने का इस टाइप का भी फेस आपका बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। और मैं आपको एक और खास बात बताऊं, अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं जो आपके लिए बहुत अहम हो या कोई आप बिजनेस के हिसाब से हो, कोई रिलेशन के मामला में कोई बड़ा अगर आप स्टेप उठाना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते के एंड में आप करेंगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। लियो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। लियो वालों को मैं कहूँगा आपके ऊपर प्रोफेशनल तौर पर कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। आप उसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। आपकी हेल्थ के अगर कोई पुराने मामला अगर डिस्टर्ब चल रहे थे, खास तौर पे आपके मसल्स पेन हो रहा हो, स्ट्रेस की वजह से हो, या कोई जैसे कहते हैं ना कि जिस्म के अंदर कोई हड्डियों का दर्द हो, या गर्दन का सर्वाइकल पेन आपको चल रहा हो, या लोअर बैक पेन आपको चल रहा हो, तो वो भी आपको इस हफ्ते देखेंगे अपने मतलब कोई हो सकता है कोई आपको ऐसी मेडिसिन मिल जाए, कोई ऐसा अच्छा डॉक्टर मिल जाए, तो आपको वो इस हफ्ते आपकी हीलिंग का टाइम है ये वाला शुरू हो रहा है। और वैसे भी मैं आपको कहूंगा ये आपकी जो पोजीशन बनी हुई है तो आपके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त रही है। आपके पार्टनरशिप के मामला में आपको बहुत ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपको पार्टनर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा और हो सकता है आपको कुछ अच्छा इकोनॉमिकल फायदा भी आपको देखने को मिले, मगर फजूल के जैसे कहते हैं ना कि ध्यान आपका थोड़ा सा जरा भटकेगा, या दोस्ती में या रिश्तेदारी में किसी के ऊपर शक की वजह से लड़ाई झगड़ा, या कोई ऐसा आपके कोई जैसे कहते हैं ना कोई कान भर दे जिसकी वजह से आपका मूड खराब हो, तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके चलिएगा। कुछ ऐसी चीजें भी होंगी, आपके ख्वाब बड़े रियलिस्टिक होंगे, मतलब इस हफ्ते अगर आप कोई ख्वाब देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत खास होंगे वो। आपको अगर कोई चीज अगर समझ में आ रही है, आपको लम्हे के लिए आपको एक इंडिकेशन होगी, मतलब आपके दिमाग के किसी हिस्से में आएगी कि ये चीज मेरे लिए सही है या नहीं है, तो उस चीज को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरी के लिए होगी। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। विर्गो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। तो विर्गो लोगों को मैं कहूंगा आपके समझदारी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, मगर आपको मैं कहूंगा थोड़ी सी तरह अपनी समझदारी को आप जरा हल्का भी लेके चलिएगा। किसी के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करिएगा, वरना हो सकता है आपको कोई नुकसान हो, खास तौर पे कहीं पैसे के लगाने के हिसाब से हो या कोई नई चीज लेने के हिसाब से, किसी के मशवरे के हिसाब से, तो थोड़ा सा जरा देखभाल के चलिएगा कोई, क्योंकि आपके दूसरे घर का मालिक 12वें घर में चल रहा है, तो एकदम पैसों और मार्स आपका दूसरे घर में चल रहा है। सबसे पहले मैं बताऊं विर्गो वालों को, क्योंकि आपका एक एनिमी प्लेनेट वो आपके माल खाने में चल रहा है, और उस घर का जो मालिक है, जो पैसों का घर का मालिक है, वो 12वें घर में चल रहा है, तो अखराजात आपके बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। पैसों कोई आप किसी को कर्जा नहीं दीजिएगा, और कोई अगर आपको कोई काम करना है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, या किसी चीज में कोई बड़ी चीज में आपको खर्चा करना है, घर हो, गाड़ी हो, या कोई प्रॉपर्टी लेनी हो, या कोई नई चीज पे अगर इन्वेस्ट करना है, तो थोड़ा सा जरा इसमें सब्र कीजिएगा इस हफ्ते के, बल्कि मैं कहूँगा इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते से स्टार्ट करने की कोशिश कीजिएगा, तो अभी नहीं कीजिएगा, ये मेरा मशवरा है आप लोगों के लिए। करीबी रिश्तेदारों में हो सकता है किसी की आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है, खास तौर पे कहूँ बीमारी की, या कोई अल्लाह ना करे डेथ की न्यूज आपको। आपके अपने मामलात के लिए मैं अगर कहूँ तो मोहब्बत के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा अगर आपको अपने पेट का भी ख्याल रखना है, गैसेस या पेट में कॉन्स्टिपेशन इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अपने खाने पीने का आपको बहुत एहतियात करना है। एक मैं आपको छोटी सी रेमेडी इसलिए कहूंगा क्योंकि आपकी जो पोजीशन है वो बन रही है, इस हिसाब से आप लाल मसूर की दाल का मंगल वाले दिन लाजमी सदका दें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा लिब्रा वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। लिब्रा वालों को मैं कहूंगा थोड़ा सा जरा गुस्सा आपके अंदर बढ़ सकता है, इस हफ्ते आपको देखने को मिल सकता है। पैसों के हिसाब से आपकी ख्वाहिशात बढ़ सकती हैं, और हो सकता है आपको कोई अगर बाहर जाना चाहते हो, सफर करना चाहते हो, कोई आपका सफर करने का कोई प्लान हो, घूमने फिरने का आपका थोड़ा दिल कर सकता है और आप जा भी सकते हैं। आपको एक अच्छी सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। हो सकता है आपके कोई बड़े बहन भाई, बड़े कजन से आपको कोई फायदा भी आपको देखने को मिल सकता है। मोहब्बत के मामलात में बहुत ज्यादा आपकी हाई वाइब्रेशन रहेगी, और अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपकी शादी में या मंगनी में कन्वर्ट हो सकती है, या आपकी जिंदगी में कोई नया मोहब्बत से रिलेटेड कोई पार्टनर आ सकता है। शादीशुदा जिंदगी में अगर कुछ इख्तिलाफात चल रहे हैं आपके, तो कुछ हद तक उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी। और आपको मैं और कहूँ कि आपको अपने वालिद की हेल्थ का थोड़ा सा ज़रा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा ज़रा आपको खर्चों को भी अपने थोड़ा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है।
अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। स्कॉर्पियो वालों का ये हफ्ता कैसा जाने के इम्कानात है। स्कॉर्पियो वालों को मैं कहूँगा, आपके अगर कोई कानूनी मामलात में कोई परेशानी चल रही है, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए चल रहे हैं, या आपके मतलब आपके करीबी रिश्तेदार कोई हॉस्पिटल में या कोई ऐसे मामले में अगर आप लोग परेशान हैं, तो इस हफ्ते कुछ हद तक आपको कमी देखने को मिल सकती है। आपको मैं एक और चीज़ कहूँ कि आपको आपकी वालदा की हेल्थ से रिलेटेड अगर काफ़ी अर्से से आप जो परेशानी में चल रहे हैं, उसमें आपको कुछ कमी देखने को मिल सकती है। हो सकता है आपको जैसे कहते हैं कि अपनी हेल्थ के मामलात में भी आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। अपना अपनी जैसे कोई जायज़ बात या अपनी कोई आपको जो आपके लिए बहुत अहमियत की बात हो, किसी के साथ वो ऐसे इंसान के साथ शेयर नहीं कीजिएगा कोई आगे चल के वो आपको कोई नुकसान का बायस बने या आपके लिए कोई परेशानी का बायस बने। तो थोड़ा-सा ज़रा अपने आप को समेट के आपको लेके चलना है। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। सेजिटेरियस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कानात है। सेजिटेरियस वालों को मैं कहूँगा, आपके मोहब्बत के मामलात, तालीमी मामलात, आपके हेल्थ से रिलेटेड मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। नए कपड़े लेना, नई अपने ऊपर ध्यान देना, अपने मतलब अपनी शख्सियत पे थोड़ा ध्यान देना, चाहे वो बाल कटाने के साथ, तो मतलब अपने आप को थोड़ा-सा ज़रा चेंज करने की तरफ आपका ध्यान बढ़ सकता है। करीबी रिश्तेदारों की कोई शादी की खबर या कोई मंगनी या कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। आपको अपने आपके अंदर जो गुस्सा चल रहा है, इसमें भी आपको कुछ कमी हद तक आगे इस हफ्ते के एंड में आपको कुछ कमी देखने को मिल सकती है। और मैं कहूँगा, आपके अगर आपके बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ परेशानी चल रही है, तो इस हफ्ते वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। एक मैं आपको सबसे बेहतरीन चीज़ बताऊँ, अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा या उनकी हेल्थ से रिलेटेड आप परेशान हैं, या आप अपनी तालीम से रिलेटेड अगर परेशानी चल रही है, तो इस हफ्ते भी आपको वो भी बेहतरी देखने को मिल सकती है। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। कैप्रिकॉर्न वालों का यह हफ्ता कैसे जाने के इम्कानात है। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं कहूँगा आपको कि आपको कुछ इकोनॉमिकल तौर पर कोई फ़ायदा हो सकता है, इस हफ्ते आपको देखने को मिल सकता है। कुछ हद तक आपका डिप्रेशन में भी आपको कमी देखने को मिल सकती है। आपको अपने घर की तरफ या अपनी वालदा की तरफ आपका फोकस बढ़ सकता है। गाड़ी लेना, घर लेना या बाइक लेना, या घर से रिलेटेड कोई घर में मेहमानों को आना, इस टाइप की आपको खुशी देखने को मिल सकती है। आपको प्रोफेशनल मामलात में आपका थोड़ी-सी ज़रा जिसे कहते हैं ना कि आपको एक भाग-दौड़ कह लें या सख्ती टाइप का फेस आपको इस हफ्ते थोड़ा-सा ज़रा आपको देखने को मिल सकता है, मगर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होगा और आगे चल के आपके लिए कोई अच्छी आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई अच्छे गिफ्ट्स मिलना या घर से रिलेट मतलब आपके लिए कोई ये अच्छे टर्निंग फेस है आपके लिए, तो ये हफ्ता इंशाअल्लाह ताला एंड का आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कानात हैं। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। क्यूरियस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कानात हैं। आपको मैं अगर कहूँ, आपके इकोनॉमिकल तौर पर आपके ऊपर आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है, मगर आपके खर्चे थोड़े से ज़रा बढ़े हुए रहेंगे। कुछ हो सकता है नए लोगों के साथ या कोई नई टीम बनाना कह लें, या कोई नई जॉब को सर्च करना कह लें, या कुछ नया अपने अंदर आप चेंज करने की तरफ आपका फोकस ज़रा बढ़ सकता है। आपको अपने वालिद की तरफ से एक अच्छी सपोर्ट मिल सकती है, मगर कहूँगा कि आपको अपने वालिद की हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। मोहब्बत से रिलेटेड मामलात या शादी से रिलेटेड मामलात, इस टाइप की चीज़ें आपके मतलब कहते हैं ना कि दिमाग में बहुत ज़्यादा आपकी आएंगी कि मैं शादी कर लूँ या कोई नया पार्टनर आ जाए, इस टाइप की चीज़ें आपके अंदर थोड़ा-सा आपको देखने को मिल सकती हैं। और आपको एक और चीज़ कहूँ मैं, आपके अगर आपके जैसे बड़े बहन-भाई हैं या बड़े कज़न हैं या कोई बड़ा दोस्त है आपका, तो अब उनकी कोई सपोर्ट के ज़रिए भी आपको कोई फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कानात हैं। पाइसेस वालों को मैं कहूँगा, काफ़ी लंबे टाइम के बाद इस हफ्ते के एंड से आपके लिए कोई अच्छा ग्राउंड बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको कोई इकोनॉमिकल तौर पर आपको कोई बड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई अच्छी, आप जैसे कहते हैं ना कि कोई अभी अगर आप कोई चीज़ स्कीम आप शुरू करें, आगे चल के वो बहुत अच्छा आपको फल दे, इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप इस फ़ेज़ में कोई जॉब करें या कोई इन्वेस्टमेंट करें, तो आगे चल के आपको वो आपके लिए फ़ायदे का बायस बन सकती है। 2-3 चीज़ों का मैं कहूँगा आपको थोड़ा ख़्याल भी रखना है। गाड़ी या बाइक बहुत ध्यान से चलानी है, किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कीजिएगा। कोई ऐसी लड़ाई झगड़े या कोई ऐसे स्टंट आप नहीं कीजिएगा जिसमें आपको आगे चल के नुकसान हो, क्योंकि मार्स आपका थोड़ा-सा ज़रा भी कमज़ोर पोज़ीशन में चल रहा है। और पेट से रिलेटेड भी आपको थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। और आपके अगर कोई कानूनी मामलात में अगर कोई परेशानी चल रही है या आप काफ़ी लंबे अरसे से कुछ बीमारी को लेके चल रहे हैं, तो इस हफ्ते के मिड के बाद से उसमें भी आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। अब मैं बात कहूँगा वो जो मैंने कही थी इब्तिदाई वीडियो के इब्तिदा में, कि सूरज ग्रहण जो 14 तारीख को लग रहा है, इसकी क्या रेमेडी करनी चाहिए। देखें,
सन एक सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसकी एनर्जी, जिसे कहते हैं कि एक फायरी एनर्जी का प्लैनेट है। हमारी बॉडी में हमारे जो मेन चक्र है उसके ऊपर, हमारे ब्रेन के उसके ऊपर इसके असरात पड़ते हैं। हमारे वालिद को जो है, सन को फादर से लेते हैं, सन को आपकी सोल से लेते हैं, सन को आपकी आंखों की रोशनी से लेते हैं, सन को गवर्नमेंट से लेते हैं, सन को हायर, जैसे कहते हैं ना कि हुक्मरान जो होते हैं, मतलब लीड करने के हिसाब से सन को लेते हैं। तो सारा जो बड़ा सबसे बड़ा प्लैनेट है सन है, वो सूरज ग्रहण लग रहा है इसमें। तो इसकी रेमेडी क्या करनी चाहिए ताकि हमारे हमारे मामलात में, हमारे प्रोफेशनल मामलात में, हमारे रिलेशन के मामलात में इसका पॉजिटिव आपको देखने को मिले। हर इंसान के जायचे में सन अलग अलग घर का मालिक है। कुछ ऐसे आपने सुने होंगे कि सूरज ग्रहण लग रहा है तो सबके लिए कैसा हो, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का सन कारक प्लैनेट है, कुछ लोगों का एनिमी है, मतलब मारक प्लैनेट है। तो जिनका कारक प्लैनेट है उनके तो रेमेडी लाजमी करनी चाहिए, और जिनका नहीं है वो करे ना करे, इतना कोई उनके लिए मसला नहीं है। तो खैर रेमेडी मैं आपको बताऊं कि एक प्याले में आपको या बड़े बाउल में आपको पानी लेना है, और उसको अपने आप सिर्फ सुबह के टाइम, मतलब 14 तारीख की सुबह के टाइम 6 बजे से लेके 11 बजे तक, 12 नहीं 11 बजे तक के दरमियान वो पानी आपको अपने सामने, सूरज के सामने खड़े होकर गिराना है, ताकि जो सूरज की तरफ से जो रोशनी आ रही है वो छन कर, जैसे कहते हैं ना कि फिल्टर होकर आपके अंदर आए। सिंपल सी रेमेडी का मकसद ये है कि जो भी उसकी नेगेटिव जो शुआएं आ रही हैं आपके ऊपर, उसको कैंसलेशन में आए। जितने भी ये, जैसे सैटर्न हो गया, वीनस हो गया, जुपिटर हो गया, हर प्लेनेट की एक एनर्जी है, हर प्लेनेट की एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी के साथ हम चल रहे हैं। हमारा मूड अप एंड डाउन हो रहा है। वो मून जैसे जैसे वो ट्रांजिट चेंज करता है तो हमारे दिमाग के अंदर सोचों में चेंजिंग आती है। तो ये छोटी सी रेमेडी करने से आपको अपने सोल में, अपने माइंड में, अपने प्रोफेशनल मामला में, अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। और आप अगर किसी मामले को लेके डिप्रेशन में चल रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। बाकी मैं कहूँगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।